Hi guys, today we will see an important topic in mental health nursing, that is mood disorder. Okay, what is mood disorder? Mood disorders are the disorders which is carried by a sudden change in the mood of a person. Okay, in psychiatric nursing we will deal with the different types of mood disorders. Okay, uh, we will discuss later. First, see what is mood disorder. Okay, it is here. Okay, uh, definition is there. The mood disorders are the disorders characterized by the disturbance in the mood. Okay, what is mood disorder? When there is any disturbance in the mood, when we call as a mood disorder. Okay, next, it is accompanied by a fully or partially. Okay, fully or partially manic or depressive syndrome. It may be manic or it may be depressive, in which it is not due to any physical or mental disorder. Okay, it is known as mood disorder. Next, classification of mood disorders is according to ICD-10 in the psychiatric nursing. The chapter F, note the psychiatric illnesses. Okay, here in that after chapter F, we have 32, F39 that contain mood disorders. Okay, that contains mood disorders, and F30 indicates the manic episodes, and F31 indicates the bipolar affected disorders, that is also known as BPAD. Okay, bipolar affected disorder. Next, it is F32 depressive disorders, and F33 is recurrent mood disorders, and F34 is persistent mood disorder, and F38 other mood disorders, and F39 is unspecified mood disorder. Unspecified mood disorder. Okay, it is our the classification and the definition of mood disorder is completed. Now we will discuss about the manic episode. Okay, next है आपका mania. Manic episode. Definition: the manic episode is the extreme level of physical and emotional state. It means अभी यहाँ पे होता है extreme level of physical and emotional state में यहाँ पे जो बंदा होता है उसका physical activity क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. That is definition is the episode there is extreme level of physical and इमोशनल स्टेट. नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं अभी आपका मीनिक एपिसोड आता है कहाँ पे, F30 में. दैट इज अब मूड डिसऑर्डर्स जो आते हैं आपके F30 से F39 में आते हैं. इसके अंदर F30 जो आता है आपका मेनिक एपिसोड, उसके अंदर अब ये मेनिक एपिसोड के भी क्लासिफिकेशन होता है. जैसे कि F30.0 ये आपका होता है हाइपोमीनिया, और F30.1 ये होता है आपका मीनिया विदाउट साइकोटिक फीचर. ओके, नेक्स्ट F30.2 होता है आपका मीनिया विद साइकोटिक फीचर, जिस यहाँ पे F30.1 में मीनिया जो होता है वो साइकोटिक फीचर दिखाता है, एंड यहाँ पे F30.2 के अंदर मीनिया जो होता है उसका साइकोटिक फीचर्स नहीं दिखते हैं. नेक्स्ट आपके F30.8 वो क्या होता है अदर टाइप ऑफ मीनिया. नेक्स्ट इज F30.9 इज मीनिया विदाउट विथ अनस्पेसिफाइड. इट मींस अनस्पेसिफाइड मीनिया यहाँ पे होता है. नेक्स्ट आपके इटियोलॉजी और कॉजेस आते हैं. अभी इसको हम कॉजेस और इटियोलॉजी बोलेंगे. फर्स्ट आपके कॉजेस जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज आपका न्यूरोट्रांसमीटर, सेकेंड इज जेनेटिक, एंड थर्ड इज साइकोडायनामिक थ्योरी. अभी फर्स्ट आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर. अब फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर में आपके डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इम्बैलेंस बिटवीन कोलिनर्जिक एंड नॉन एड्रेनर्जिक, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर में कॉजेस हो गया. नेक्स्ट आपके जेनेटिक कॉज क्या होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. इट मींस द ट्विंस और द देयर इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. इट मींस अभी यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा आ जाएगा वो क्या होगा, एक ही एग से डेवलप हो जाएगा. दैट इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस. आपका नेक्स्ट आता है साइकोडायनामिक थ्योरी. साइकोडायनामिक थ्योरी में बोलते हैं आपके जो डेवलपमेंटल हाइपोथेसिस है उसके अंदर बोलते हैं कि अभी जब अर्ली लाइफ जो बच्चा एक फैमिली में रहता है उसके अर्ली लाइफ में कुछ अगर फॉल्टी बिहेवियर हो रहा है तो लेटर लाइफ में जाके उसको मेनिया हो सकेगा. There is a risk factor. Okay, this is psychodynamic theory. These are the causes. Next हम देखते हैं कि clinical manifestation. Clinical manifestation होते हैं आपके चार पार्ट में. वन इज एलिवेटेड मूड एंड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड होता है, और आपका इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, स्पीच एंड थाउट रहते हैं, और अदर फीचर्स. अभी एलिवेटेड मूड के अंदर जो आता है आपका चार स्टेज आते हैं. फर्स्ट स्टेज होता है आपका यूफोरिया. यूफोरिया में पर्सन क्या रहता है, बहुत एक्सेसिव हैप्पीनेस रहता है. नेक्स्ट एलेशन में एक्सेसिव हैप्पीनेस विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. नेक्स्ट आपका एक्सल्टेशन में क्या होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, मूड एलिवेशन विथ देयर इज अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ओके, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब जहां पे वो बंदा अपने आप को ही
बहुत बड़ा इंसान मानता है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट एक्सटेसी। एक्सटेसी में क्या होता है, अब ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ साथ क्या करता है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि किसी का उसके ऊपर आशीर्वाद है, दैट इज ब्लिसफुलनेस इज देयर। ओके, नेक्स्ट आपके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ऑलरेडी वी सीन। नेक्स्ट आता है आपका स्पीच एंड थॉट। स्पीच, इसमें स्पीच में आता है आपका फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स जो पर्सन रहता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया को सडनली जंप कर देता है, दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज आर देयर। नेक्स्ट रहते हैं आपके यहाँ पे थॉट्स में आते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज प्रेजेंट। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट अदर फीचर्स में आते हैं आपके डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। वहां पे वो जो पर्सन रहता है उसका स्लीप बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट और उसका पुअर जजमेंट, वो अपने काम पे जज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देर इज एब्सेंस ऑफ इनसाइट। इनसाइट क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड जो मीनिया का पेशेंट होता है वो हाइपर सेक्सुअलिटी दिखाता है। एंड देर इज अ प्लेजर talking. These are the things are present. Next we will see the diagnosis and treatment modality of mania. Okay, next is diagnosis. Okay, diagnosis में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है आपका देयर इज अ मीनिया रेटिंग स्केल। मीनिया रेटिंग स्केल, एमआरएस। मीनिया रेटिंग स्केल जो होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका मीनिया रेटिंग स्केल होता है। इसके अंदर जो आपके 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस के ईच क्वेश्चंस के 0 से 4 मार्क्स होते हैं। इसके हिसाब से हम उसको रेटिंग दे सकते हैं। ओके, दिट इज कॉल्ड मीनिया रेटिंग स्केल। नेक्स्ट होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। इट मीन्स वी आर चेकिंग दी लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अभी अगर न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा या घटने से भी क्या होता है, मीनिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट के अंदर आता है आपका फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आता है आपका मूड स्टेबलाइजर्स। फर्स्ट हम देते हैं आपको मूड स्टेबलाइजर। अब मूड स्टेबलाइजर में आता है आपका लिथियम। लिथियम जो होता है 0.6 से 1.2 ml मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना ही देना चाहिए। नेक्स्ट अभी वेल्पोरेट होता है आपका 60 से 125 mg पर लीटर देते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी कन्वल्सन। एंटी कन्वल्सन में आता है आपका गाबापेंटिन, नेक्स्ट टाइप्रोमाइट, नेक्स्ट लेमोट्राइजिन, ये आपके क्या होते हैं, एंटी कन्वल्सन। नेक्स्ट हम मूड स्टेबलाइजर में कार्बेंजीपाइन भी देते हैं। कार्बेंजीपाइन 6 से 12 mg पर ml पर लीटर, दैट इज वो हम कार्बेंजीपाइन भी देते हैं मूड स्टेबलाइजर में। नेक्स्ट आता है आपका इफ साइकोटिक फीचर्स, अगर आप मीनिया के साथ साइकोटिक फीचर प्रेजेंट रहे तो हम देते हैं ओलेंजीपाइन, रेस्पिरिडोन, लोराजिपम एंड क्लोनाजिपम, ये आपके होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक हम दे सकते हैं। ओके, अगर अगर यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर और एंटी कन्वल्सन काम नहीं करेंगे तो हम देते हैं उसको साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में आता है आपका दैट इज फार्माकोथेरेपी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका साइकोथेरेपी। ओके, साइकोथेरेपी थेरेपी में आता है आपका फर्स्ट ईसीटी। हम इसको देते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी हम इसको देते हैं जो पेशेंट एंटी कन्वल्सेंट और मूड स्टेबलाइजर से भी ठीक नहीं होता है, हम उसको देते हैं ईसीटी। ये आपका हो गया साइकोथेरेपी। नेक्स्ट आपका आता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान आप देखेंगे इस पे स्क्रीन पे, दिस इज अवर नर्सिंग केयर प्लान। ओके, इस तरह से हम लिखना चाहिए। ओके, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड।